ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है गुवाहाटी और शिलोंग में चल रहे 12वें दक्षिण एशियाई खेलों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। This is All India Radio. We now present our special program on the 12th South Asian Games being held at Guwahati and Shillong, Selfie from Northeast. गुवाहाटी और शिलोंग में खिलाड़ियों के पसीने का रंग अब सोने, चांदी और कांसे के रंगों में तब्दील होने लगा है। राष्ट्रध्वज ऊंचे और ऊंचे उठने लगे हैं। 12वें दक्षिण एशियाई खेल अपने शबाब पर हैं। प्रस्तुत है इन खेलों पर आकाशवाणी की विशेष पेशकश सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं सिंगला लस्का। शुक्रवार को गुवाहाटी में इन खेलों के उद्घाटन के बाद कल शाम शिलोंग में भी एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन के बारे में एक सेल्फी शिबू जॉर्ज की। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का दूसरा उद्घाटन समारोह कल सह आयोजक राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित हुआ। इस आयोजन की खास बात थी 8। जी हाँ, दक्षिण एशियाई खेलों में भाग ले रहे 8 देश, उत्तर पूर्व के 8 राज्य, मेघालय की 8 जनजातियां। जनजातीय लोक वादकों ने ऑस्ट्रेलियाई विंड पाइप से प्रेरित विशेष विंड इंस्ट्रूमेंट से पूरे स्टेडियम में आवाज की एक समा बांध की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्तर पूर्व के 8 राज्यों की सांस्कृतिक विरासत की झलक थी। प्रतियोगिता में भाग ले रहे 8 देशों के खिलाड़ियों के आगे चल रही थी अपनी पारंपरिक पोशाक में मेघालय की 8 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करती प्ले कार्ड धारक। मेघालय के मुख्य सचिव बारकोस बार्जरी का मानना है कि मेघालय में इन खेलों का आयोजन यहाँ के युवाओं को प्रेरित करेगा और देश ही नहीं, दक्षिण एशिया के नक्शे में मेघालय का नाम और मजबूती से आगे लाएगा। Meghalaya, as you know, is a sports-loving state, and we love to see all kinds of games and sports here. This is definitely a tremendous bonus for us, and we hope that we'll be able to prove that Meghalaya can rise to the occasion. Meghalaya loves sports. All kinds of events like this opens the eyes of various people, especially the youngsters, and they will see that it is possible for them, well, to be a champion, and the talent which we have, hopefully now, will be able to come out and blossom. और संगीत तो जैसे उत्तर पूर्व के रग रग में बसा हो। शिलोंग के साथ सेल्फी लेकर हाजिर हैं जोशुआ खारकोंगोर। From the time the sun caresses the top of lush green mountains to the time it disappears in the distant horizon, giving way to moonlight, nothing prepares you for the enigmatic beauty of Meghalaya, with its rolling hills, breathtaking waterfalls, silent lakes, and a wide array of flora and fauna. Meghalaya is a perfect holiday destination to soothe weary minds. One of the most popular tourist destinations is Shillong, the capital of Meghalaya. Some of the popular spots in and around Shillong are the Lady Hydro Park, the Wards Lake, the Shillong Golf Course, the Shillong Peak, and the Don Bosco Centre for Indigenous Cultures. The Lady Hydro Park is a popular spot both with locals and tourists. It is located in the heart of the city with an abundance of plants and flowers. The best months to see the flowers in bloom are April and October. Next to the park is a mini zoo where many species of birds and animals attract visitors of all ages. The Wards Lake, or Artificial Lake, is also situated in the heart of the city. The lake received its name from Sir William Ward, the Chief Commissioner of Assam then. The Khasis called it Nonpalok after an engineer of the same name who executed the construction work. This horseshoe-shaped lake is set in a landscaped botanical garden adjacent to the lake. This lake is a popular spot for morning and evening walks and for boating.
The Shillong Golf Course, a beautiful 18-hole course highly regarded amongst golfers from all over the world who come to Shillong to test their skills on its greens. The clubhouse has been designed to resemble an English manor. Set at an altitude of 5,200 feet, the famous golf course was set up in 1898 and is often referred to as the Glen Eagle of the East. The Shillong Peak, the highest point in the state, stands at about 1,965 meters above sea level and is 10 kilometers away from the city of Shillong. A favorite amongst tourists for a stunning bird's eye view of the city. On a clear day, it offers a panoramic view of the spreading city below and also a glimpse of the majestic Himalayan peaks. On a cloudy day, the view of the city through the pine forest is shrouded with an air of mystery and is just as enthralling. In spring, prayers are offered to Ublay Shillong, the presiding deity of Shillong Peak, by the priest of Himamalayam. The Elephant Falls, located at about 12 kilometers from Shillong, derives its name from a rock resembling an elephant before it got destroyed in an earthquake in 1897. The Khasis referred to it as Kshaj Laipateng Khosio, or the three-tiered waterfalls. The Don Bosco Center for Indigenous Cultures, or the DBCIC, popularly known as Don Bosco Museum, is a 3-in-1 institution combining a museum with research and publication center for promoting and preserving the rich cultural heritage of the northeast of India. A unique fusion of all the sister states under one roof. It rises in Shillong skyline overlooking the legendary Shillong Peak like a flame. The Don Bosco Museum is the largest cultural museum in Asia. It's a place where you can see, learn and experience the diverse cultures of Northeast India all under one roof. Meghalaya has been fascinating thousands of people by its aura of myths, mystery, music, and all the gifts of nature. And if you're looking for an ideal destination for vacation and fresh environment and the feel of nature, Shillong is the right place. For Selfie from Northeast, this is Joshua Kharkungor. गुवाहाटी ने आए हुए खिलाड़ियों और मेहमानों के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए हैं। शाहिद अनवर। खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और मनोरम वादियों से सजे असम में दिलफरेब फिजाएं हमेशा आपके स्वागत में बाहें फैलाए मिलेंगी। वैसे गुवाहाटी के व्यस्त पल्टन बाजार के होटल में रिसेप्शन काउंटर पर कुछ और भी चीजें हमारा स्वागत कर रही थी। दीवार पर लगा गोमशा और झांपी मेहमानों के खैर मकदम में सजी थी। सदियों से चली आ रही इस परंपरा ने असम को खास पहचान दी है। असम एपेक्स वीवर्स आर्टिशियंस कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड आर्टफेड के प्रबंध निदेशक रामेश्वर दास हाथ से बुने गए गोमशा के बारे में बताते हैं। गामूसा मेनली बनता है कॉटन गामूसा मेनली, इसके साथ आता है फ्लोरल डिजाइन, साइड में पारी होता है लाल पारी का, उसके दो हिस्से में फूल आता है वो भी लाल होता है, और लाल का मतलब होता है प्रेम होता है। तो अपने को जो स्वागत करता है वो गामूसा से स्वागत करता है। गामूसा के साथ हमारे मेनली पान तामुल, गाँव के सम्मान व्यक्ति पान तामुल से हम स्वागत करते हैं और सेवा करते हैं और बहुत माना जाता है। पान तामुल हम किसी को तो उपहार देना चाहते हैं तो जापी देते हैं, सोराई देते हैं, हम प्यार से देते हैं। लाल रंग का मतलब होता है प्रेम। हम प्रेम से आपका स्वागत करते हैं। धूप और बारिश से बचने के लिए बांस की बनी छतरी नुमा आकृति झापी अब आदर के साथ स्वागत का प्रतीक है। गोमशा कंधे पर डाला जाता है तो झापी सिर की शोभा बढ़ाता है। विनोद तालुकदार कहते हैं, और जापी तो हमारा ट्रेडिशनल आइटम है। ये जापी नॉर्मली यूज किया था जो रेनी सीजन में जो कल्टीवेटर था वो लोग यूज किया था, लेकिन अभी आजकल ये तो पूरा सागत में यूज होता है। ये नॉर्मली हम लोग का नलबारी डिस्ट्रिक्ट से आता है सब लोग। हमारा नाम है दिलीप कुमार वैश्य। जितना जनसंख्या
गमछा है, जितना लोग है हर घर में, हर आदमी के पास, ये जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चा हो, सबके पास ये गमछा रहता है। और ये गमछा से एक दूसरे को मतलब स्वागत करते हैं। कोई नया मेहमान आता है तो उनको भी इस गमछा से मतलब स्वागत किया जाता है। और ये जापी भी आसामीज लोग खुद बनाते हैं, अपनी हाथों से बनाते हैं। और आसाम की हर घर पे आप जाओगे ना, तो उनका एंट्रेंस जो गेट होता है ना, तो उसमें एक ना एक तो जापी मतलब रहना जरूरी है, या तो रखते ही है सब लोग। गुवाहाटी में पढ़ाई कर रहे गोलाघाट जिले के युवा वेदांत विकास वोहरा को इस परंपरा और संस्कृति से बहुत लगाव है। संजो कर रखना चाहते हैं इसे। असम के लिए भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है। आई एम प्राउड टू बी एन असमीज। तो जो ट्रेडिशन है ना, एक यूनिक ट्रेडिशन है। इंडिया के आप किसी भी जगह में जाइए, इसी तरह से ट्रेडिशनल आइटम्स के साथ स्वागत किया जाता है असमी। उसके लिए मैं भी गर्वित हूँ असमीज के रूप में। स्वागत की परंपरा को महफूज रखना स्वागत योग्य है, तभी तो यहाँ की परंपरा संजोए साउथ एशियन गेम्स का शुभंकर तिखुर सभी के स्वागत में गोमशा ओढ़कर ही स्वागतम, खैर मकदम और वेलकम कह रहा है। गोमशा, झापी और सोहराय के साथ आकाशवाणी के प्रसारण में आप सभी का स्वागत करते हुए सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं शाहिद अनवर। शोर तो हर तरफ होगा ही, इतने बड़े खेल जो हो रहे हैं। मुकुल गोस्वामी निकले हैं किस शोर की तलाश में, आइए जानते हैं। बचपन में जब बहुत शोर मचाते थे तो डांट पड़ती थी, घर को मच्छी बाजार मत बनाओ। जी हाँ, ये है मच्छी बाजार। हम तो बचपन से है। पूरी ब्रह्मपुत्र नदी मछलियों से भरी पड़ी है। छोटी बड़ी रंग बिरंगी मछलियाँ कहीं थोक में बिक रही हैं तो कहीं इक्का दुक्का। ये माल जो आता है ना, वो होलसेल कर देता है, होलसेल में लेता है, उसका लिए हम लोग थोड़ा कमीशन मिलता है। 6 बजे से लेके मान लीजिए 9 बजे तक चलेगा, उसके बाद में हम लोग का बंद हो जाता है ये मार्केट। बेचने वाले रात भर मछलियाँ ढूंढते हैं और सुबह बेचकर अंटी में रुपए खोसकर मुस्कुरा के चल देते हैं। नदी से पकड़ता है, नहीं तो फिशरी है, पुकुरी है, वहाँ से पकड़ के ले आता है। 4-5 तो मार्केट है, होलसेल मार्केट एकदम रोज चलता है। क्योंकि मछली नहीं तो आज ये नदी में आज यहाँ मछली है, कल यहाँ से चला जाएगा, इसलिए इसको पकड़ने होगा। मछली यहाँ तोल में बिकती है, किलो के हिसाब से। मछली ऊपर में देते हैं, तब जाकर हम लोग वजन करते हैं। फिर होता है 10 केजी एक पाव, ऐसा जितना माल लेता है उतना हम लोग देते हैं। पर जो मछली धारा के विपरीत तैरती है, उसको देखकर मछली खाने वालों का मन ललचा जाता है। इल्चा मछली बोलता है उसको। उसमें एक तो ख्वादे आलदा होता है, वो नदी का धारा को क्रॉस करके आता है, उल्टे धारा में आता है, इसलिए उसका ख्वाद जास्ती होता है। हाँ, ताकत जास्ता होता है। और ये खेलते रहता है ना, और जो काटा रहता है ना, जो जिस मछली का हड्डी जाती है, टेस्ट जास्ती होता है काटे वाला मछली। बेचने वाले खुश, खरीदने वाले खुश, खाने वाले खुश, पर जो बिकती है लोगों की जुबान का स्वाद बनकर खुश। इस वक्त ज्यादातर लोगों को चाय की तलब लगती है, लेकिन आप थोड़ा रुकिए, प्रोग्राम खत्म होने दीजिए, फिर पीजिएगा अपनी चाय। फ्लोरिन रोश के हाथ में है इस वक्त चाय का प्याला। It is said that the best way to find your way into the hearts of others is through the stomach. एक कप चाय हो जाए is a common dialogue when we meet our loved ones, relatives or friends. Assam tea has surely charmed its way through the people's heart because of its distinctiveness. The ubiquitous tea stalls of Assam is a common sight in Guwahati. For tea lovers, it's easy to find their favorite beverage in any of the streets at any time of the day or late night. शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा? फिर से दोहराओ। Drink it hot, cold, iced, or as green, black, or with milk. It's sure to tickle your taste buds, wanting to have more. So, what makes Assam tea so special? We went around the city of Guwahati to find more about Assam tea. Subram Das, who came to this shop to buy a few packets of tea to his friends in New Delhi, points out. असम के चाय इसीलिए लेते हैं कि मैं दिल्ली में अब जॉब करता हूँ, तो वहाँ का आदमी कहते हैं कि असम का चाय बहुत अच्छा है।
तो इसीलिए हम यहाँ से ले जाते हैं दोस्त वगैरह के लिए 2-4 किलो 5 किलो ले जाते Seller Pratik Agarwal was in this business for the last 12 years. Sing praises about Assam tea in his inimitable style. असम का चाय में एक फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, एक टेस्ट भी रहता है, तो इसलिए असम की चाय विश्व प्रसिद्ध है। सब कोई लेते हैं इस चाय को, पसंद करते हैं। फ्लेवर की वाइज तो आपका दार्जिलिंग का चाय ज्यादा मशहूर है और कलर वाइज आपको असम की चाय बढ़िया है। When it comes to the mistress of the house, she surely knows how to brew the right cup of tea. डिम्पल हजारिका, असम का साइड वो तो हमारा जो ब्रिटिश जमाने से है, जब बागानिया जो हम लोगों का भाषा में हम बागानिया बोलते हैं, उसी में से 2-3 था चाय का बागान उस टाइम पे, लेकिन अब तो बढ़ के तो 1000 के ऊपर हो गया। मतलब अच्छा चाय पत्ती होने से ज्यादा उबालने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में ही हो जाता है। Visitors to Assam never fail to take back at least a few packets of tea leaves, and those Assamese who visit their relatives and friends elsewhere always gift them tea leaves. There's of course more to tea than what meets the eye. It's not just a beverage. Tea leaves are known for their diverse purposes in cosmetics and personal care products. बाल के लिए यूज करते हैं और ग्रीन टी को तो उसके लिए भी यूज करते हैं, पिंपल्स के लिए और फेस के लिए। Tea leaves are also used as organic fertilizers and much more. So, all those who love this widely used beverage must taste Assamese tea and enjoy its flavor, its vibrant hue and other eclectic benefits. I'm definitely going to carry a few packets when I pack my bags back home after the South Asian Games. What about you? मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल। गुवाहाटी से आकाशवाणी की पूरी सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के साथ कहते हैं आपको नमस्कार। सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, प्रस्तुति सहयोग संजय व्यास, प्रस्तुति महेंद्र सिंह लालस, परिकल्पना और निर्देशन कुलविंदर सिंह कंग। गुवाहाटी और शिलोंग में आयोजित 12वें दक्षिण एशियाई खेलों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सेल्फी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा आकाशवाणी गुवाहाटी और शिलोंग में तैयार किए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया। That was our special presentation, Selfie from Northeast, on the 12th South Asian Games 2016 being held at Guwahati and Shillong. Produced by the Central Production Team at Guwahati, this broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.